यस सर। कैसे हैं प्रभात जी? क्या? वेरी गुड। स्किल शेयर है। यस सर। राइट। जस्ट वी आर टॉकिंग टुडे इन जावास्क्रिप्ट oops, right? ओके सर। यस। And the validation we are talking about today. So guys, we can see here we are talking the concept of oops. It is called OOPS, ओके। right? So it stands here object oriented programming systems. It is called object oriented programming system. It is called oops. Points clear? यस सर। So in OOPS, guys, we are talking about the two factor. In OOPS, we are talking about they are the two factor in the OOPS. One is a class, another is what? Another is objects. Basically, we are discussed that. So we can see in OOPS, we have the two things. Is basically we are discussed. So first is the class, and another we are creating the objects. Now, first thing we are talking about what do you mean about class? What is a class? And another factor is objects. So first we are talking about the class. Have you little bit idea about the class? What is class? We are writing here group of objects. Is called what? Class. Point is clear? So I यस। mentioned about the class. What is class? Group of object is called class. And behind we can see another is object. So object is what? We are saying object is an instance of class. So we are writing here object is an instance. What do you mean by instance? Instance means we can say reference. Object is always created by reference of class. So guys we can see here कि हमारे पास में क्या है instance of your reference of class. Point is clear? Example we can see. I'm giving the example here. School is a what? School is a name of class. पहले स्कूल होगा, इसके बिहार पर क्या बनेगा? यू कैन टेल मी प्रिंसिपल। क्या बिना स्कूल का प्रिंसिपल आपने देखा है कहीं पे? नो। नहीं ना। तो इस नो। प्रिंसिपल इज व्हाट? Principal is object and school is what? School is a class. So this is called class and principal is called what? Object. So it is an instance. It means what here? We can see instance. Instance means reference. बिना स्कूल का प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट बनेगा किसके बेस पे? क्लास के बेस पे। Another example, family is class and we can see another is a what? Father. Father is what? Father is object. Family is class and father is object. So guys, we can see here object is always created behalf of class. This point is clear. Have you any यस। query? यस सर। Yeah. So now we are talking about, I have discussed here basic concept of OOPS. Now we are sending the content on your WhatsApp. So wait please, just we are sending it. So see here, सर एक क्वेश्चन पूछे तो सर आपको सर व्हाट्सएप पे क्या पूछे थे? लीड कोड से था सर। लीड। यस लीड कोड से था। अच्छा मैं देख लूंगा। यही है ग्रुप ना? देखिए पहुंचा आपके पास। यस सर। राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फीचर ऑफ oops. फर्स्ट वी आर टॉकिंग हियर फीचर ऑफ oops. तो सी हियर फीचर ऑफ oops. What are the feature? First feature is inheritance. Point ओके। is clear? First feature is called inheritance. Second feature is what? Second is the polymorphisms. We are talking, it is called polymorphism. एग्जाम्स। Third is the encapsulations. It is called encapsulation. Fourth is the abstractions. We are talking about abstractions. So these are the different kinds of feature of OOPS. Now, guys, पहले first हम लोग बात करते हैं. First feature is inheritance. So we can see we are talking about the first feature. It is called
Inheritance. So see, what do you know about inheritance? Have you any idea about inheritance? Tell me. No, sir. See, there are the two class. One is a parent class, another is a child class. So we can see there are the two class. We are creating the two class. One is ABC, right? One Yes. is ABC, and this class value is age 20. This class value is called age. Or another class is XYZ, and this variable is called salary. We can see is equal to 500. So now see, I have taken the two class. One is ABC, another is a XYZ. So what is ABC? ABC is called here superclass. It is called parent class. ABC is called parent class, and parent class is called superclass. Point is clear? जो parent class होता है उसको क्या कहते हैं? Super class. Another is C, XYZ. It is called child class, and we know child class is called subclass. Point is clear? So in terms of inheritance, we can see property of superclass is inherited into child class. Property of superclass is inherited into subclass. It's called inheritance. साइंस कैसे में ये property? पढ़ेगा कि फादर का जेनेटिक कैरेक्टर उसके डॉटर में आ जाए. साइंस में पढ़कर आ रहे हैं ना, यही तो बात हो रहा है ना. एबीसी इज अ Yes, sir. फादर पेरेंट, और एबीसी का प्रॉपर्टी किसमें जा रहा है? उसके चाइल्ड में. तो चाइल्ड क्या हो Definition गया बोलेंगे यहाँ सर एक पे? बार सर. हेलो, Definition एक बार बोलेंगे सर. इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? एबीसी इज ए बेस क्लास, सुपर क्लास, and XYZ is a child class. Property of superclass ABC which have inherited into child class XYZ. Right? इसकी प्रॉपर्टी ABC की क्या है? एज ना. तो एज इनहेरिट होकर किस में आएगा? XYZ में. तो XYZ में क्या हो जाएगा? एज भी हो जाएगा और सैलरी भी हो जाएगा. पॉइंट इज क्लियर? तो we are writing here about the inheritance. Property of superclass. We are writing about the concept of inheritance. See here, we are writing here properties. Properties means यहाँ पे एज है. Property of superclass. Superclass ABC is inherited into subclass. Subclass is called child class. Property of superclass is inherited into subclass XYZ. It's called what? It's called inheritance. This point is clear? Yes. Now, guys, we can see we are talking about types of inheritance. We are talking here types of inheritance. To see, we are writing here types of inheritance. बहुत ध्यान से समझेंगे. Types of inheritance. There are 4 types of inheritance we are discuss here. How many types of inheritance? 4 types of inheritance basically. One is the what? First inheritance is called single inheritance. We are talking first inheritance is called single inheritance. Now we are asking here, what is a single inheritance? Question is here, what is a single inheritance? बहुत ध्यान से समझेंगे terms. In single inheritance, we can see it is one class and it is another class. I am taking the two class. One is here A, another I am taking here BB, right? And here age is this one, and here it is a property. Salary is this one. Point is clear? So see, A is what? A is a superclass, BB is a subclass. So property of superclass AA is inherited into class of BB, right? By using of how many label is here? Here is a one label. In between two class, they are the one label. And here is a one direction. Point is clear? So how many level? Here is a one level and the one direction, right? So in single inheritance, definition is here.
सुपर क्लास प्रॉपर्टी, सुपर क्लास एबीसी प्रॉपर्टी, एबीसी प्रॉपर्टी is inherited into subclass XYZ by using of one label, लेबल भी क्या होगा, वन होगा, एंड वन डायरेक्शन, लेबल वन समझे नहीं डायरेक्शन, वन डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल सर? इनहेरिटेंस में क्या होगा गाइस, लेबल भी क्या होगा, वन होगा, और डायरेक्शन भी क्या होगा, वन होगा। ये पॉसिबल कब है, जब दो क्लास होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। दो क्लास होगा तभी तो एक लेबल एक डायरेक्शन होगा ना। हेलो, सर लेबल सर किसको बोल रहे हैं सर? लेबल लेबल का मतलब होता है गैपिंग। गैपिंग गैपिंग। ए और बी में, ए और बी में एक ही है ना, हाँ और डायरेक्शन क्या ऊपर से नीचे आ रहा है ना, हाँ। तो लेबल भी एक है और डायरेक्शन भी एक है, ओके। तो ये सिंगल हो गया। और मल्टी लेवल में क्या होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी लेवल। दूसरा इनहेरिटेंस होता है, बहुत ध्यान से मल्टी समझेंगे। लेवल है, मल्टी डायरेक्शन हो जाएगा सर। हाँ, दूसरा है मल्टी लेवल, मल्टी टी टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, राइट। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस guys, we can see it is a one class, it is another class, it is another class. So we can see this class is called AA, and this is बीबी called BB, सीसी। and this is called CC. The concept समझिए। Here यस। age is a property, here salary is a property of this class, and here quantity is a property of this class. Point is clear? So we can see now ABC AA superclass inherited into BB, and BB superclass is inherited into CC. Point is clear? तो how many level is here? कितना लेवल है, एक लेवल तो यहां से यहां तक हो गया, दो। दूसरा लेवल यहां से फिर यहां तक हो गया, हम्म, है कि नहीं है। इट इज कॉल्ड मेनी लेवल, इट इज कॉल्ड मेनी एलवीएल लेवल। बट डायरेक्शन क्या है, एक ही ना, ऊपर से नीचे। तो हाँ। मेनी लेवल एंड व्हाट हेयर वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन। तो मल्टी लेवल में क्या हो गया कि लेवल एक हो, लेवल ज्यादा हो, डायरेक्शन एक हो। मोर देन वन लेवल of superclass are inherited into subclass by using one direction is called क्या कहलाएगा, मल्टी लेवल। is called multi-level inheritance. This point is clear. यस। तो सिंगल लेवल मल्टी लेवल में डिफरेंस समझ में आ गया, आई होप। यस सर। Right. Now, next third we are talking multiple inheritance. Third inheritance is called, like concept समझे, third is called multiple inheritance. We are talking here multiple inheritance. See, पल है, वहां लेबल था, यहाँ पल है। तो सी यहां पर क्या होगा, वी कैन सी हेयर, एक ये बेस है, ये फादर है, एक फादर का दो चाइल्ड मोर है। डायरेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, वी कैन सी ये जो पापा है इसका प्रॉपर्टी ऐसे आ रहा है, इसके दो किड्स हो गए, देख रहे हैं ना। यस। और फिर इसका क्या हो गया, यहां पर हो गया, और इसका यहां पर हो गया। अब दिस क्लास इज कॉल्ड एबीसी ए ए, दिस क्लास इज कॉल्ड बीबी, दिस क्लास कॉल्ड इज सीसी। इसमें वेरिएबल क्या था, एज। इसमें क्या था आपका, सैलरी। इसमें क्या था, क्वांटिटी। देखिए एक लेवल तो ये हो गया, वन लेवल इज दिस वन, ये एक लेवल है ना, और एक लेवल ये हो गया। तो लेवल भी एक से ज्यादा है,
डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर ऊपर से नीचे आना, और यहां से क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है, और यहां से क्या होता है, राइट हो जाता है। देख रहे हैं ना? तो मेनी लेवल और मेनी डायरेक्शन है कि नहीं है? यस क्या हो गया यहाँ पर, सी मेनी लेवल हो गया एलबीएल, और मेनी क्या हो गया, डीआईआर डायरेक्शन हो गया। तो सुपर क्लास के प्रॉपर्टी जब मेनी लेवल मेनी डायरेक्शन से इनहेरिट होता है तो क्या कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर properties of superclass are inherited into subclass by using of many levels and many direction। इसको क्या कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर व्हाट इज दिस वन, क्या कहलाता है ये, मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। इंटीजर मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, टेल मी। यस सर मैनी लेवल रहेगा मैनी हम्म, डायरेक्शन लेवल क्या होगा, मेनी होगा, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगा, मेनी होगा। दोनों मेनी मेनी होगा। लेवल भी क्या होगा, मेनी होगा, और डायरेक्शन भी क्या होगा, आपका मेनी होगा। ऐसा इनहेरिटेंस क्या कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। लास्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज कॉल्ड क्रॉस इनहेरिटेंस। फोर्थ वन इज वी आर टॉकिंग हियर क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रॉस वी आर सेइंग हियर इट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सी हियर, क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या देखते हैं, सी ये डायग्राम तो होगा ही होगा, एक दो तीन, देख रहे हैं ना, पॉइंट इज क्लियर। तो अब ये क्या हो गया, यहां से नेट हुआ, यहां पर क्या होगा, ये दोनों क्लास में जाएगा। अब यहां से क्या होगा, सी इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। नाम क्या है इसका, ए, दिस इज द बीबीए एंड दिस इज कॉल्ड सीसी। बड़े बोलो ही लेते हैं, एज 33, सैलरी दिस वन, क्वांटिटी दिस वन। अब देखिए यहां पर वी कैन सी, ये दोनों क्लास क्या होगा, इस क्लास में आ जाएगा। सी, तो वी कैन सी हियर, देखते हैं कि ये क्लास यहां से क्रॉस होगा और ये क्लास यहां से क्रॉस होगा, दोनों एक पॉइंट पर क्या होता है, मर्ज होता है, और यहां पर न्यू क्लास बनाता है। तो ये जो यहां पर क्रॉस हो रहा है जिस पॉइंट पर ना, यही पॉइंट है क्रॉस इनहेरिटेंस। ये पॉइंट क्या हो गया, इट इज कॉल्ड क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रॉस, या वी कैन से इट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये क्लास बन गया क्या, डीडी, और डीडी में क्या डाल दिया यहां पर, फोन नंबर। देख रहे हैं ना, तो सारा चीज डीडी में आ गया। तो क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या हो गया, मोर देन टू सब क्लास। तो डीडी का सब क्लास कौन, पेरेंट क्लास कौन हो गया, बीबी और सीसी। मोर देन टू सब क्लास आर क्रॉस टुगेदर, क्रॉस टुगेदर to generate of new subclass is called cross inheritance. This point is clear? यस तो नाउ जब दो पेरेंट क्लास आपस में क्रॉस होता है और न्यू क्लास बनाएगा तो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड क्रॉस इनहेरिटेंस। तो मैं इसको अभी अब शेयर करता हूं, इसमें कुछ पूछना है? नो सर आई हैव डिस्कस हियर इनहेरिटेंस फीचर हियर। तो जस्ट फर्स्ट वी आर सेंडिंग दिस वन।
ओके, हेलो, यस सर। पहुंचा आपके पास यस सर। प्रभात जी? यस सर, आ गया सर। हेलो, आ गया सर। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं आफ्टर द क्रॉस एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बाद देखते हैं नेक्स्ट फीचर इज व्हाट हेयर, पॉलीमॉर्फिज्म्स। वी आर टॉकिंग अबाउट टर्म्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स। व्हाट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म? क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? Polymorphism is basically made by two words, right? First is poly. First word is the word poly. Poly means many. We are adding here. First term is poly. Poly का मतलब क्या होता है? मैंने। Poly का मतलब होता है many. Another term is morphism. Morphism. Morphism का मतलब होता है forms या steps. नहीं फॉर्म्स। It is called polymorphism. Example मैं दे रहा हूं सी। आपने शुगर का नाम सुना है? शुगर, चीनी। यस सर। अब देखिए चीनी से क्या क्या बनाते हैं। एक चीनी हमारा है, उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम बनाते हैं। खीर बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं। मतलब एक हम्म। चीनी को एक से ज्यादा फॉर्म में यूज कर रहे हैं आप? हम्म। नहीं। यस सर। तो क्या कहलाता है यह? जब एक मेथड को एक से ज्यादा क्लास में यूज करेंगे तो क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म्स। One method to access in the several classes is called polymorphisms. एक मेथड को एक से ज्यादा क्लासेस और सब क्लास में एक्सेस सब करते हैं तो दिस टर्म इज कॉल्ड polymorphisms. So we are adding guys to access of one method more than one class, more than one superclass and subclasses is called what? Is called polymorphism. Point is clear? यस सर। Next बात होती है we are talking about encapsulation. What is encapsulation? Encapsulation का मतलब क्या होता है बताएंगे? यस। नहीं पता सर। जी, नहीं पता सर। वेरी गुड। कोई बात नहीं पता तो अच्छी बात है। देखिए we are talking about encapsulation. Encapsulation is a terms in OPS. आपने कभी सर दर्द हुआ है? यस हुआ सर। होगा। यस लेमन सर। एग्जांपल समझिए, आप कहाँ जाते हैं? मेडिकल स्टोर। क्या कहते हैं? हम्म। सर मुझे सर दर्द हुआ है, मुझे लाल वाली गोली दे दो। हम्म। राइट, उजली वाली हाँ। गोली दे दो। सर दर्द हुआ है, टैबलेट दे दो, बोलते हैं ना। हाँ। मेडिकल स्टोर पर क्या होता है, आपको लाल वाली, उजली वाली, पीली वाली या सर दर्द वाली, वो आपको टैबलेट दे देता है। हाँ। आप वो टैबलेट खा लेते हैं। क्या आपने कभी उसका केमिकल कंपोजिशन रीड किया था? हम्म। नहीं किया होगा। उसके केमिकल कंपोजिशन आपने रीड नहीं किया होगा। लेकिन वो सारा क्या है? इनकैप्सुलेट है, मर्ज है। इनकैप्सुलेट मतलब होता है मर्ज करना। इनकैप्सुलेट मतलब क्या होता है? मर्ज करना। लेकिन जब वो इनहेल्ड हो जाता है तो एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है और आपका सर दर्द क्या होता है? दूर हो जाता है। अनदर एग्जांपल, अपने कार को देखो। कार का पूरा इंजन जो है वो इनकैप्सुलेट है, एक दूसरे से क्या है? मर्ज है। और कैबिनेट से क्या है? वो ढका होता है। हमने चाबी को स्टार्ट किया, चाबी से एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा कंपोनेंट क्या है? मर्ज है, इनकैप्सुलेट है। और सारे कंपोनेंट मिलकर क्या होता है? गाड़ी को आगे मूव करता है। एक ही काम किया ना, सारा कंपोनेंट गाड़ी को आगे क्या किया? पुश किया।
तो इनकैप्सुलेट का मतलब ही होता है रैपिंग ऑफ डेटा टू परफॉर्म ए सिंगल टास्क। वी आर राइटिंग हेयर रैपिंग। रैपिंग का मतलब होता है मर्ज। रैपिंग ऑफ डेटा टू परफॉर्म ए सिंगल टास्क। सिंगल टास्क इस कॉल क्या कहलाता है? इज कॉल्ड yes, इनकैप्सुलेशन। पॉइंट इज क्लियर? yes, सारे डेटा एक साथ इनकैप्सुलेट होकर मर्ज कर कर जब एक सिंगल टास्क परफॉर्म करता है तो दिस टर्म इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट फीचर होता है सी, एब्स्ट्रैक्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? कीवर्ड। ऐसा चीज जो इनविजिबल फॉर्म में काम करता हो, yes, वह इनविजिबल फॉर्म में काम करता हो तो क्या कहलाता है? वह एब्स्ट्रैक्शन। टू परफॉर्म टास्क, टू परफॉर्म टास्क इन इनविजिबल फॉर्म्स। इनविजिबल फॉर्म्स, ऐसा चीज जो टास्क परफॉर्म करता हो इनविजिबल फॉर्म में, क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ने के लिए भेजा गया है। आप इंस्टीट्यूट जाते हैं या कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में कौन है? टीचर। sir, आप हैं। तो आप और टीचर के बीच में क्या हो रहा है? इंटर कम्युनिकेट हो रहा है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट रूप में कौन काम कर रहा है? आपका पेरेंट और आपका मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट यही कर रहा है ना। वह क्या करता है आपके पास में? वह एब्स्ट्रैक्ट है, वह हिडन है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स हिडन है, इनविजिबल है। वह हिडन फॉर्म में टास्क परफॉर्म करता है। फीस देना हो, आपका पेरेंट टाइम पर फीस दे रहा है। क्लास शेड्यूल बाउंस ना हो, मैनेजमेंट क्लास शेड्यूल करवा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट इज ए कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स हिडन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर ऑफ ओप्स। अब बात करते हैं सी, मेथड ऑफ ओप्स। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्रैक्टिकल शुरू करेंगे हम। पहले इंट्रोडक्शन पॉइंट हम बात किए थे। नाउ वी आर टॉकिंग द प्रैक्टिकल सेशन। तो देखिए, हम क्लास में ऑब्जेक्ट तीन मेथड से बनाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट। मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में जो हम मेथड बनाते हैं, कितने मेथड से? तीन मेथड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो तीन मेथड्स ऑब्जेक्ट बनाने का है, पहला मेथड है गुरुजी, नाम है लिटरल मेथड। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? दिस मेथड इज कॉल्ड लिटरल मेथड, ज्यादा पूछता है। दूसरा है इंस्टांस मेथड। वी आर राइटिंग एयर अनदर मेथड, क्या है? इंस्टांस मेथड। और थर्ड मेथड है कंस्ट्रक्टर मेथड्स। क्या कहते हैं? थर्ड मेथड इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर मेथड। सो गाइस, वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट by three method. One is a what? One is a literal method. पहला मेथड क्या कहलाता है? It is called literal method. Second is the instance method, and third is the constructor method. These are three methods to create object in JavaScript. और हम सर किसी, डिस्ट्रक्टर सर, हाँ, डिस्ट्रक्टर भी होता है ना सर? इंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर है। नहीं सर, डिस्ट्रक्टर भी होता है ना एक? वो बताएंगे अभी। वो कंस्ट्रक्टर अलग चीज है और डिस्ट्रक्टर अलग चीज है। सी प्लस प्लस ऊपर बताएंगे बाद में। अभी ऑब्जेक्ट बनाने का तीन मेथड हम ये बता रहे हैं। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर होता है। पहुंचा देखिए तो, राइट। अब हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग फर्स्ट मेथड, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरल मेथड्स। वी आर टॉकिंग हियर लिटरल मेथड्स की बात करते हैं। सी द प्रोग्राम ऑफ लिटरल मेथड्स। हमने क्या किया यहां पर देखिए, ये है लिटरल मेथड। मैंने क्या किया यहां पर? वी कैन सी हेयर, मैंने लिखा स्क्रिप्ट के बाद कॉन्स्ट पर्सन। पर्सन क्या है? व्हाट इज ए पर्सन? पर्सन क्या है? पर्सन इज ए नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है पर्सन? पर्सन इज ए नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। और मैंने इसमें कॉलम का नाम क्या होगा? कर्ली ब्रेसेस, याद रखिएगा, इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। अगर इस तरह से हो तो लिटरल मेथड कहलाता है।
कॉलम का नाम है फर्स्ट नेम में क्या डाला, जॉन। लास्ट नेम में क्या डाला, डू। एज डाला इतना, आई कलर डाला इतना। तो ये चारों कॉलम किस में जाएगा, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में। और मैं लिखा यहाँ पर्सन डॉट एज, तो क्या प्रिंट करेगा, 50 करेगा ना, या नहीं करेगा। यस सर। हेलो, यस सर, करेगा सर। करेगा ना। अगर यस। मैंने इसको अगर मैं इसको रन करा रहा हूं सी, अगर मैं इसको रन करा रहा हूं तो सी ये क्या करेगा, पर्सन इज ऑब्जेक्ट। और मैंने इसको अगर रन करवा दिया तो क्या प्रिंट किया यहाँ पर, 50 किया या नहीं किया, देखिए तो। नहीं आया ना, कुछ मिस्टेक की है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिखे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और लिखे हैं पर्सन डॉट एज, राइट, पर्सन डॉट एज। सी है, रिफ्रेश करें ब्राउजर, आ गया 50, आया या नहीं आया। यस सर। हेलो, यस सर, आ गया सर। तो ये कौन सी मेथड था, दिस इज कॉल्ड लिटरल मेथड, याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड लिटरल मेथड्स। हमने डाल भी दिया। अगर यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं तो कैसे करेंगे लिटरल मेथड में। अगर मुझे इनपुट जो है यूजर से कराना है लिटरल मेथड में, कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, x इक्वल टू प्रॉम्प्ट, देखते जाइए क्या लिखा है यहां पर, सी इंटर द, क्या लिखा, एफ नेम। जो भी नाम डालेंगे किस में जाएगा, एक्स में। y इक्वल टू प्रॉम्प्ट, देखिए कैसे नाम डाल रहे हैं, क्या लिखा है यहां पर, इंटर एल नेम, इंटर एल नेम, लास्ट नेम लेगा वो। क्या कहा है यहां पर, इंटर एज, तो एज इक्वल टू, एज जेड इक्वल टू, क्या लिखे, प्रॉम्प्ट। क्या लिखेंगे यहां पर, इंटर द एज। अब ये क्या पूछेगा आपका, एज डालिए। एक्स वाई जेड हो गया। मैं 3 ही लेता हूं, ज्यादा नहीं लेता हूं, इसको छोड़ देता हूं, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, जहां पर जॉन है वहां पर क्या कर देंगे, एक्स। जहां पर डू है वहां पर क्या कर देंगे, वाई। और जहां पर एज है वहां पर कर देंगे जेड, है कि नहीं है। और अगर मैंने इसको सेव किया और रन कराएंगे तो सीधा आउटपुट रिजल्ट, आउटपुट रिजल्ट में क्या पूछ रहा है, यूजर से मांग रहा है ना। अब नाम डाला सी, मनीष फर्स्ट नेम। अब लास्ट नेम पूछ रहा है ना, डाला कुमार। और आप पूछ रहे एज ना, डाला 44। ओके करिए, देखिए क्या आ रहा है, एज आया ना, क्योंकि मैंने प्रिंट क्या कर रहा हूं यहां पर, एज ही प्रिंट किया है यस। ना। हेलो, यस सर। तो हमारा एज ही करेगा। अगर तीनों चीज प्रिंट करना चाहते हैं तो तीनों चीज कर सकते हैं। तो मैंने यस। यहाँ पर क्या किया, सी, इसको आपको शेयर कर दिया। अभी लिटरल मेथड की बात करते हैं। अब क्वेश्चन है, मुझे लूप लगाना है तो क्या करेंगे, अगर सारा प्रिंट करना है तो ये लाइन ऐड कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट। और क्या कर देंगे यहाँ पर, ब्रेक। ब्रेक से क्या होगा, न्यू लाइन। न्यू लाइन क्रिएट होगा। अब मैंने अभी एक चीज प्रिंट की है, दोनों चीज प्रिंट करना है, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट। अब मैंने 2 बार, एक बार पेस्ट किया, यहां पर क्या डाला, यहां पर डाला नेम, क्या डाला, फर्स्ट नेम। नेम। और इसमें क्या डाला है यहां पर, फिर पेस्ट कर दिए, लास्ट। क्या नाम है, यस एल नेम है ना, है या नहीं है, यस सर। है। यस। तो हमने यहां पर डाल दिया एल नेम, क्या डाल दिया, लास्ट नेम। हो गया या नहीं हो गया, पहला हो गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब अगर प्रिंट करेंगे तो देखिए सारा डेटा प्रिंट करेगा, वी कैन सी द रिजल्ट। अगर मैं रिफ्रेश कर दिया, देखिए नाम डाल रहा है ए, फर्स्ट नेम डाला, यहाँ पर मिडिल नेम में, लास्ट नेम में सिंह, एज डाला 22। देखिए सारा डेटा आया कि नहीं आया, अनडिफाइंड आ रहा है, क्या आ रहा है, सी, अनडिफाइंड। देख रहे अनडिफाइंड हैं आ भैया, रहा है इसलिए, यस सर। क्या कर रहा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, सी, पर्सन एक्स वाई जेड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
फर्स्ट नेम, पर्सन, लास्ट नेम, एन कैपिटल है, देख रहे हैं ना, स्मॉल करना पड़ेगा इसको, दिख रहा है मैं आपको? यस सर, यस सर। अब इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल था इसलिए, आप देखिए आ जाएगा। नाम डाला ए, लास्ट नेम में कुमार, एज में 22, देखिए आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब क्या किया, मल्टीपल चीज किया एक्सेस वहां से। अब मुझे इसमें सपोज लगाना है डुअल लूप, तो क्या करेंगे, अब इसको शेयर कर देता हूं। अभी लिटरल मेथड की बात कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग यस अबाउट लिटरल मेथड। अगर अब मुझे इसमें डुअल लगाना है, क्योंकि एक बार के बाद क्या होता है, प्रोग्राम एग्जिट होता है, डुअल लगाना है तो यहां पर कर देंगे डू, देख रहे हैं ना? फर्स्ट टाइम क्या होगा, लूप क्या होगा, स्टार्ट होगा, और लास्ट में यहां पर कर देंगे वाइल। क्या लिख रहे हैं, आंस इक्वल टू, आंस इक्वल टू प्रॉम्प्ट। क्या लिख रहे हैं यहां पर, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या लिख रहे हैं यहां पर, यस या नो, देख रहे हैं ना? यस अब सर। क्या करेंगे यहां पर, वाइल आंस इक्वल टू वाइल, बाय। क्लियर? अब लूप क्या होगा, आइटरेट होगा, जब तक चाहेंगे तब तक लूप को हम रिपीट करते रहेंगे, सीधे रिजल्ट। पहले बार डुअल है, नॉर्मल रन करेगा, मैंने डाला ए, लास्ट नेम डाला कुमार, और एज डाला 11। अब कहा डू यू वांट टू कंटिन्यू, कहा यस, फिर डाला यहाँ बीबी, फिर डाला यहाँ पर लास्ट नेम में है ना SINGH, और वैल्यू डाला दिस वन। अब कहा नो, देखिए दोनों डेटा आया कि नहीं आया? यस सर। तो लिटरल मेथड इज क्लियर। यस सर। Now, after literal method, we are talking about instance method. By use of instance method, we are creating object. So just we are sharing the code of literal methods. पहुंचा ये आपके पास? यस सर। पहुंचा या नहीं? यस सर। Now we can see we are talking about the instance method. ऑब्जेक्ट बनाने का न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए क्या लिखा है इंस्टांस मेथड में, न्यू ऑब्जेक्ट, ओ कैपिटल होता है ऑब्जेक्ट का, याद रखेंगे। फर्स्ट नेम में क्या डाला, जॉन, सेकेंड लास्ट नेम में क्या डाला, डू, एज क्या डाला 50, आई कलर डाला क्या, ब्लू। तो ये क्या प्रिंट करेगा, जॉन ही ना, यस सर। करेगा या नहीं करेगा? लेकिन करेगा सर। ऑब्जेक्ट किससे बना है यहां पर, न्यू ऑब्जेक्ट मेथड से। हम्म। Instance method means what? We are creating object by use of new object. New is a keyword. Object is a inbuilt function. Instance method में object जो बनता है new object से। अगर हम इस कोड को रन कराते हैं इसे, ये याद रखना है, वहां कर्ली ब्रैसेस से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहां पर न्यू ऑब्जेक्ट से। अगर मैं इसको रन कर रहा हूं तो वी कैन सी क्या दे रहा है रिजल्ट, आ गया ना जॉन? यस सर। तो दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट, instance method. By use of instance method, we are creating object by new object. ये मेथड है ऑब्जेक्ट बनाने का, बाकी इनपुट करा सकते हैं इसमें। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टांस मेथड। तो वी आर राइटिंग हियर इंस्टांस मेथड ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। सी द रिजल्ट, कोड पहुंच गया आपके पास में। Next, we Yes. are talking about the constructor method. We are creating object by use of constructor method. Constructor मतलब function. Constructor means what? We are talking about the function. देखिए ये function का नाम क्या है, person. person में हम 4 वेरिएबल पास करते हैं, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। अगर फंक्शन के ब्रैकेट से आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, कितना है, फर्स्ट लास्ट एज एंड आई, इफ यू वांट टू पास द आर्गुमेंट बाय यूज ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड पैरामीटराइज फंक्शन। तो क्या इसके थ्रू क्या करेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज और आई कलर पास करेगा। तो कंस्ट्रक्टर का ये बॉडी एरिया क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। अब मैंने माय फादर क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, माय फादर इज अ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं लिखा न्यू पर्सन। तो यहां पर क्या होगा, जॉन नेम में जाएगा, ये लास्ट नेम में जाएगा, एज होगा, ये ब्लू होगा, और हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, माय फादर डॉट एज। तो क्या प्रिंट करेगा, 50 ना। यस। तो हमने यहां पर पर्सन नाम का क्या है, कंस्ट्रक्टर है,
और जो पर्सन नाम से ही क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। माय फादर ऑब्जेक्ट बनाना, तो मेथड का नाम कंस्ट्रक्टर ये है और ये दोनों नाम सेम होना चाहिए, उसके बिहाफ पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर मेथड्स। हमने क्या बात किया, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टर मेथड। सो गाइस वी कैन सी हियर we are creating object by use of three methods. One is the what, literal method. We are creating object by use the curly braces, equal to curly braces. If you want to create object by the equal to curly braces, is called literal methods. Another is instance method. By use of instance method, we are creating object by new object. New is a keyword, object O should be capitals. Another is a constructor method. The function name and method of the object name are the same. The name of function is called constructor. So in JavaScript, we are creating object by three methods. This point is clear? This point is clear? Yes, sir. Hello? Clear. अब हम बात करते हैं डाटा वैलिडेशन। वी आर टॉकिंग हियर डाटा वैलिडेशन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। देखिए मेरा कंसेप्ट क्या है पहले समझेंगे, यहां पर लॉजिक समझें। क्या करता हूं मैं, मेरे पास में यहां पर पहले ये लॉजिक बताती है, लॉगिन आईडी है, यूजर आईडी। क्या करते हैं, ये यूजर आईडी है, अनदर इज ए पासवर्ड और अनदर इज ए सबमिट बटन। तीन चीज हम बना रहे हैं। कहता है सी इट इज ए यूजर आईडी, टेक्स्ट बॉक्स है, और इट इज ए पासवर्ड। ये हमारा क्या है, यूआई का डिजाइन है, इट इज ए डिजाइन ऑफ यूआई। पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर यूजर आईडी एम्प्टी हो, मतलब यूजर आईडी में यूजर ने कोई नाम नहीं डाला है, क्या है, अगर ये एम्प्टी है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है पासवर्ड अगर 6 कैरेक्टर से लेस हो। क्या कहा, जो पासवर्ड है वो पासवर्ड कितना है, 6 कैरेक्टर से अगर लेस है। बात समझे ना, या Yes, sir, पासवर्ड तो पर है, invalid बात है। करता हूं ग्रेटर इक्वल टू 6 कैरेक्टर है। और अगर हमारा यूजर आईडी एम्प्टी हो तो क्या देगा, यूजर आईडी कैन नॉट बी ब्लैंक। वैलिडेशन डाल दिया कि यूजर आईडी आप ब्लैंक नहीं रख सकते हैं। पहला टर्म समझ में आया यहां पर, Yes. कि अगर यूजर आईडी, यूजर ने कोई यूजर आईडी में कुछ नहीं डाला, अब पासवर्ड 6 कैरेक्टर से ज्यादा डाल दिया, तो क्या कहेगा, यूजर आईडी कैन नॉट बी ब्लैंक। पहला क्वेश्चन। यूजर ने क्या कहा, यूजर आईडी अब दूसरा कहता है ब्लैंक नहीं रखेंगे, और पासवर्ड क्या है, 6 कैरेक्टर से कम है। दूसरा क्वेश्चन है पासवर्ड 6 कैरेक्टर से कम हो और यूजर आईडी क्या होगा, नॉट एम्प्टी। अब यूजर आईडी एम्प्टी नहीं है, तो अब क्या देगा, अब जब क्लिक करेंगे सबमिट पे तो देगा पासवर्ड मस्ट बी 6 मोर देन 6 कैरेक्टर। क्या देगा, पासवर्ड एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 6 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। अब टोन क्या चेंज कर, तीसरा कंडीशन बता रहे हैं कि पासवर्ड यूजर आईडी भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और वी आर सेइंग पासवर्ड जो है वह 6 कैरेक्टर्स इक्वल टू 6 कैरेक्टर से अबव। तो क्या देगा, सक्सेसफुल। देख रहे हैं वैलिडेशन, 3 कंडीशन हमने यहां पर यूज किए। पहला यूजर आईडी एम्प्टी किया, पासवर्ड 6 कैरेक्टर से ज्यादा रखे, दिया यूजर आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी। अब यूजर आईडी में नाम डाला, पासवर्ड 6 कैरेक्टर से कम डाला, तो कहा पासवर्ड कैन नॉट बी लेस देन 6 कैरेक्टर। अब यूजर आईडी में नाम डाला और पासवर्ड भी 6 कैरेक्टर से है, तो क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं इस यूआई का, तो सी देखिए मेरे पास में क्या है, सी इट इज ए वैलिडेशन। मैंने यहां पर गया से जाकर इसको क्लिक कर दिया, वी कैन सी मैंने कहा वैलिडेशन नाम का एक बॉडी एरिया बनाया। पहले समझिए कंसेप्ट क्या कर रहा है, वैलिडेशन नाम का एक हमने यहां क्या बनाया, बॉडी एरिया। वैर क्या होता है, डेटा टाइप, नेम नाम का वेरिएबल है, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम वैल्यू। इसका मतलब है कुछ जो यूजर आईडी में यहां पर जो नेम डालेंगे वह नेम कहां जाएगा, इस नेम में स्टोर कर लेगा, और जो पासवर्ड यहां डालेंगे टेक्स्ट बॉक्स में ये कहां जाएगा, ये पासवर्ड में जाकर स्टोर कर लेगा। अब कहता है कि नेम
क्या लिखा है इसमें, नेम इक्वल टू नल या और नेम इक्वल टू एम्प्टी। नाम ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए, खाली भी नहीं होना चाहिए। अगर नाम का टेक्स्ट बॉक्स, यूजर आईडी का टेक्स्ट बॉक्स खाली होगा तो क्या प्रिंट करेगा, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। अगर नाम 6 कैरेक्टर से नाम डाल दिया है तो एल्स वाला पोर्शन बढ़ाएगा। क्या चेक करेगा, पासवर्ड 6 कैरेक्टर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर पासवर्ड 6 कैरेक्टर से कम है तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा। दोनों ट्रू है तो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर हम इसको रन करा रहे हैं, वी कैन सी, देखेंगे आउटपुट क्या आ रहा है। दिस इज द आउटपुट। हमने क्या किया, इसको रन करा रहे हैं, देखिए ये आया ना लॉगिन आईडी। हेलो, यस सर। अब हम नेम जो है, यूजर आईडी नेम जो है खाली रखे, पासवर्ड 6 कैरेक्टर से ज्यादा डाल दिया, देखिए तो क्या मैसेज दिया, यस। नाम ब्लैंक नहीं होगा। यस। अब हमने नाम जो है यूजर आईडी में नाम डाल दिया, अब पासवर्ड 2 ही कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर डाला, अब क्या करेगा, सही जगह से। पासवर्ड 6 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए, दे रहा है ना। अब हम पासवर्ड भी 6 कैरेक्टर से ज्यादा डाल रहे हैं, यस। हो गया सक्सेस। हाँ सर। तो क्या कहते हैं, दिस इज द वैलिडेशन। ये भेज रहा है, एक बार कर मुझे देखिए, शेयर करके देखिए तो, चेक इट, कॉपी कर लीजिए, नोटपैड पर सेव कर रन करके देखिए। जल्दी क्लास चल गया अभी, कितने देर तक है? 5:30 बजे का 5:30 बोलो, 15 मिनट का कराने का। किसी का डेटा डेटा साइंस का। ऑनलाइन हाँ, 15 मिनट का करा देना। करा देने से फ्री होगा, चलिए 5:30 फिक्स है, हाँ? 5:30 बजे आप मेरे होगा। को मोबाइल क्रेडिट दे देना 5:30 को, ठीक है? 15 मिनट की करा देना। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करिए अपना, स्क्रीन शेयर करिए। ओके सर। प्रभात जी स्क्रीन शेयर कीजिए, राइट। लेना, नेम में कुछ मत डालिए, पासवर्ड 3 कैरेक्टर डालिए, 6 कैरेक्टर, 6-7 कैरेक्टर डाल दिए। हाँ, अब सबमिट पर क्लिक करिए, रजिस्टर पे क्या दिया पढ़िए, यस सर। क्योंकि हमने लिखे थे इफ यूजर आईडी क्या था वहां पर, नल या यूजर आईडी इक्वल टू डबल कोट, दिखा दिया ना। रिफ्रेश करिए, अब यूजर आईडी, दोबारा रन कर दीजिए, दोबारा से रन फाइल कर दीजिए। हाँ, यूजर आईडी नाम डाला हुआ है, पासवर्ड 3 कैरेक्टर डालिए, कोई यस भी तीन नीचे। कैरेक्टर हाँ 3 कैरेक्टर, और रजिस्टर पर मारिए। क्या कहा, यूजर आईडी तो वैलिड हो गया, पासवर्ड 6 कैरेक्टर है, हमने डाला है 3 कैरेक्टर, तो इनवैलिड हो गया ना। यस सर। अब पासवर्ड जो है 6 कैरेक्टर से ज्यादा डालिए, डालिए 6 कैरेक्टर से ज्यादा, सबमिट मारिए, ओके हो जाएगा, हो गया। तो इसे कहते हैं वैलिडेशन। हमने यहां पर यूजर आईडी पासवर्ड पर क्या लगा दिया, टेक्स्ट बॉक्स पे वैलिडेशन डाल दिया। यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो घर के लिए, यस सर। राइट ए प्रोग्राम यस सर, राइट to प्रोग्राम। generate validation on radio box and checkbox.
Write a program to generate validation on radio box and checkbox. Generate. Radio box and checkbox. दूसरा लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट वैलिडेशन ऑन टेक्स्ट एरिया. To create validation on text area. तीसरा क्वेश्चन लिखिए, राइट ए प्रोग्राम हाउ कैन इनहेरिट द सिंगल इनहेरिटेंस क्लास एंड ऑब्जेक्ट. Write a program. राइट ए प्रोग्राम सिंगल इनहेरिटेंस ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. सिंगल इनहेरिटेंस ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए प्रोग्राम to use of while loop by use of constructor method of object. Use To of use of while loop by use of constructor method of object. कंस्ट्रक्टर मेथड ऑब्जेक्ट में while loop लगाना है. और लास्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन map and set. Write short notes on map and set. Illustrate with programs. map and Map, M-A-P, map. map and Set, S-E-T, set. Illustrate with programs. Done? yes. तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 5. राइट? आपका क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं. स्क्रीन शेयर हो गया? Yes sir. पवन जी, Yes sir. आपका कौन सा, कहाँ भेजे थे, क्या भेजे थे, बताएंगे मुझे कुछ? Yes sir. दोस्त हम्म? हेलो, इसमें आ गया? 100 नंबर का 200 नंबर था सर. कहाँ है इसमें? 200 नंबर था सर. 200 नंबर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ सर. कौन है दूसरा नंबर? बताइए. Yes sir. कहाँ? क्वेश्चन दिया दिखाना है? होगा क्या सर? हेलो कुछ है ही नहीं इसमें. सर, आपको पर्सनली भेजा है सर. कहाँ? कौन सा नंबर, क्या नंबर बताओ ना. सर जिस नंबर से भेजे थे वो नंबर याद है आपको? ये सर अभी मैसेज किया सर. हाय. हाय लिखिए तो उस पे हाँ लिखे मोबाइल हैं से. सर. मोबाइल से हाय लिखिए सर. लिखे हैं सर. हाय. कहाँ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है. मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा, ना हाय ना कुछ नहीं आ रहा है. क्या होगा सर? देखिए. हाँ अब आया. माइनस टैग. क्वेश्चन तो क्या इजी है था सर. इसमें? किसी का क्वेश्चन है? सम करना है सर 2 नंबर को. शॉर्ट करना है. सम करना है. सम सर. सम. क्वेश्चन क्या? गिव द एनी इंटीजर num and the integer the target of the indicate of the two number such that the है ना odd of the है ना target. सर एरिया का साइज बता दिया है, उसमें से आपको 2 नंबर को कोई भी सम करके आना चाहिए 9 और आउटपुट 01 आना चाहिए. कौन सा क्वेश्चन? एग्जाम्पल 1 का यस सर. 3 एग्जाम्पल है. हाँ. तो केस किसकी बात कर तीनों रहे हैं? केस है हम्म? सर. 3 केस है सर. एग्जाम्पल 1 पे बात कर रहे नहीं, 1 2 3 में किस 3 का? हैं सर. तीनों नहीं हो पा रहा था सर. तीनों नहीं हो पा रहा है. यस.
इस तरह क्वेश्चन नहीं बनाया ना सर कभी। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर तीनों नहीं हो पा रहा है सर, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कभी बनाया नहीं सर, प्रैक्टिस नहीं किया है। चलिए एक काम करेंगे, कितना हम्म। बजे सो जाते हैं? अभी मैं क्लास है मेरी, कितना बजे सो जाते हैं? सर 12 1 बजे। हाँ तो नाइट में आपको कर दूंगा, सुबह में ले लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ सुबह, क्योंकि मेरी क्लास है 5:30 बजे। क्लियर? वो बना लीजिएगा, नाइट में कर दूंगा आपको। ठीक, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, थोड़ा सा उसमें अंदर जाएंगे, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर सब बात करेंगे, राइट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? क्लियर है प्रभात जी? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, 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 आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है प्रभात जी? हेलो, 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 हेलो। तो बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं सेम टर्म। ओके। ओके सर। ओके ओके। सर।